اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ وہ دونوں ہی بڑے اشتیاق اور حیرت سے اپنی دوست کی طرف سے ملا ہوا شادی کا تحفہ کھولنے لگے، جس کو کھولتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو پریشان ہوتے ہوئے شرمندگی سے دیکھنے لگے۔ ان کی شادی پر دیا جانے والا خاص طور پر تحفہ بلا شبہ بہت قیمتی اور مہنگا تھا، مگر اس تحفے کے ساتھ ایک خط بھی ملا جس میں لال سیاہی سے لکھا گیا تھا، یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ سیرت بچپن سے ہی بہت باتونی اور بے باک لڑکی تھی، اس لیے وہ ہر ایک سے بنا کسی ہچکچاہٹ کے بات کر لیا کرتی تھی۔ بچپن میں تو ہر کوئی اس کی اس عادت سے بہت خوش ہوتا تھا، کیونکہ عموماً اس عمر کے بچے ہر ایک سے بات نہیں کر پاتے۔ اس کے ہم عمر رشتہ داروں کے بچے اس کی بنسبت شرمیلے تھے۔ سیرت اپنی اس خوبی کی وجہ سے سبھی کی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی اور سبھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ سیرت اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور سیرت کالج میں پڑھنے لگی۔ سیرت چونکہ اکلوتی تھی، اسے اپنے بہن یا بھائی کی محرومی کا بہت زیادہ احساس ہوتا تھا، اسی لیے اس نے اسکول کے دور کی ایک دوست جس کا نام تہمینہ تھا اسے اپنی بہن مان لیا تھا۔ تہمینہ بھی پڑھنے میں اچھی تھی اور وہ سیرت کے ساتھ ہی اسکول میں بھی پڑھتی رہی اور اب کالج میں بھی دونوں ایک ساتھ ہی داخلہ لے چکی تھیں۔ یوں سیرت کو بھی ایک بہن مل گئی تھی۔ تہمینہ سیرت کی بنسبت کم گو تھی، مگر وہ بھی سیرت سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ سیرت اور تہمینہ ایک دوسرے سے ہر بات کر لیا کرتی تھی۔ بچپن کی دوستی اب جوانی کے ساتھ ساتھ اپنے عروج پر تھی۔ سیرت اور تہمینہ جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں پر کو ایجوکیشن سسٹم تھا۔ دونوں بہت ہی اچھے اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ تہمینہ اور سیرت دونوں امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے پہلے تو وہ شہر کے سب سے اچھے اور بڑے اسکول میں پڑھتی رہیں اور اب کالج میں داخلہ لیتے وقت بھی انہوں نے بڑے اور سب سے مہنگے مشہور کالج میں داخلہ لیا تھا۔ دونوں ہی اپنی مرضی کی مالک تھیں، جیسے اکثر امیر لوگوں کے بچے ہوا کرتے ہیں۔ سیرت چونکہ اکلوتی تھی اس لیے اس کے والدین اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہوتے تھے، جس کے سبب سیرت کی شخصیت ایسی بن چکی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی بات پر انکار نہیں سن سکتی تھی، کیونکہ بچپن سے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ جو اس نے مانگا، جس بات کی اس نے خواہش کی، کبھی اس حوالے سے اسے کسی نے انکار کیا ہو۔ سمجھوتا کرنا کیا ہوتا ہے اسے ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا۔ ایک روز سیرت اور تہمینہ کالج میں چھٹی کے وقت گراؤنڈ میں ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف تھیں۔ تبھی سیرت کی نظر سامنے گیٹ پر پڑی، کیونکہ سیرت اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ تہمینہ سیرت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی رکی ہوئی تھی۔ ایسے میں تہمینہ نے بھی اپنے ڈرائیور کو وہیں پر رک کر انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سامنے گیٹ سے ایک بہت ہی خوبصورت جوان لڑکا کالج کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سیرت کو بہت عجیب لگا، کیونکہ اس وقت تو سب ہی کالج میں سے جا رہے تھے، جبکہ وہ واحد لڑکا تھا جو کالج کے اندر آ رہا تھا۔ سیرت کی حیران ہونے کی ایک وجہ اور بھی تھی، وہ اس لڑکے کا ہر درجہ خوبصورت ہونا تھا۔ سیرت اچانک سے اس لڑکے کو دیکھ کر خاموش ہو گئی، جبکہ تہمینہ یوں سیرت کی بات کرتے ہوئے بیچ میں ہی چپ ہو جانے پر چونک کر سیرت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نظروں کو پڑھتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ تبھی تہمینہ کی بھی نظر اس نوجوان لڑکے پر پڑ گئی۔ تہمینہ نے سیرت کو بلایا، مگر سیرت تو جیسے وہاں پر ہے ہی نہیں تھی۔ تہمینہ کے بلانے پر سیرت نہ بولی تو تہمینہ نے سیرت کو جھنجھوڑا۔ سیرت ہوش میں آ گئی۔ تہمینہ سیرت سے مذاق میں کہنے لگ گئی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا تم نے کبھی خوبصورت لڑکے نہیں دیکھے؟ سیرت کے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں، ایسا تو کبھی نہیں دیکھا۔ جب انسان بنا سوچے سمجھے منہ سے اچانک سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ زیادہ تر اپنے دل کا حال بیان کر دیتا ہے، یعنی وہ بے اختیار اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے۔ ویسا ہی سیرت بھی کہہ چکی تھی۔
तहमीना जो कि सीरत को अच्छे से जानती थी, वो सीरत की दिलचस्पी को समझ गई। इतने में वो लड़का उनके करीब से गुजरते हुए कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गया, जबकि सीरत वहीं पर बुत बनी बैठी थी और तहमीना उसे ही देख रही थी। इतने में सीरत का ड्राइवर भी आ गया और वो दोनों अपने अपने घर के लिए रवाना हो गईं। सीरत घर में पहुंचते ही सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि इससे पहले वो घर में दाखिल होते ही शोर शराबा करती थी और उसके शोर शराबे की वजह से घर के तमाम लाज़मीन उसके आगे पीछे दौड़ने लगते थे। यूं महसूस होता था सीरत के घर में आने पर जैसे जलजला आ गया हो और सब अपनी जान बचाने के लिए घर में इधर उधर भागते थे, मगर आज पहली बार ऐसा हुआ था। सीरत खामोशी से सीधा अपने कमरे में चली गई थी, यहाँ तक कि घर के ज्यादातर मुलाजमीन को सीरत के घर में आने की खबर भी नहीं हुई थी। सीरत की वालिदा जो कि अकलौती बेटी की माँ थी, वो हर वक्त सीरत के बारे में सोचती रहती थी। सीरत की वालिदा जल्दी से सीरत के कमरे में गई और उससे फिक्रमंद होते हुए पूछने लगी, क्या बात है बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? ये कहते हुए वो सीरत के माथे पर हाथ रखते हुए अपनी फिक्र को दूर करना चाहती थी कि कहीं सीरत को बुखार तो नहीं। माथे पर हाथ रखते हुए उन्होंने गहरी सांस ली, क्योंकि सीरत बिल्कुल ठीक थी। सीरत अपनी वालिदा के यूं पूछने पर कहने लगी, हाँ सब ठीक है, बस जरा थकावट महसूस हो रही थी, मैं कुछ देर के लिए आराम करना चाहती हूँ। ये सुनते ही सीरत की वालिदा कमरे में से बाहर निकल गई। फिर उसके बाद अगले रोज सीरत वही लड़के की सोच लिए कॉलेज के अंदर दाखिल हुई, ये सोचते हुए आखिर वो लड़का कॉलेज में छुट्टी के वक्त क्या करने आया था। सीरत जरूरत से ज्यादा ही उस लड़के के बारे में सोच रही थी। गोया सीरत के अंदर उस खूबसूरत नौजवान लड़के को लेकर अजीब सा तजस्सुस का दरिया बह रहा था, जो सीरत के क्लास में दाखिल होते ही थम सा गया, क्योंकि सीरत की क्लास में वो लड़का सबसे पहली सीट पर विराजमान था। सीरत उसे अपनी क्लास में देखकर मजीद हैरत में पड़ गई, अगरचा वो लड़का भी सीरत का हम उम्र ही था। तभी क्लास में पीरियड शुरू होते ही सीरत की हैरत को खत्म करते हुए उन लोगों की मिस ने बताया, सावल आप लोगों का नया क्लासमेट है और मुझे उम्मीद है आप लोग सावल के साथ सही से ताउन करेंगे, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं साल खत्म होने को है और 11वीं क्लास के सालाना इम्तिहानात करीब करीब हैं। जबकि सावल अपने वालिद के इस शहर में ट्रांसफर होने की वजह से अब हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए आया है, इसलिए आप लोग सावल के साथ ताउन करते हुए पढ़ाई में उसकी मदद करेंगे। ये कहते हुए मिस ने सबको ताकीद की। सबने इस बात में सर हिला दिया। यूं तो क्लास में और भी लड़के पढ़ते थे, मगर सीरत सावल की जैसी पहली नजर में दीवानी हो गई थी। सावल ज़हीन था और वो जिस शहर को छोड़कर आया था वहां पर भी उसने 11वीं क्लास का कोर्स काफी हद तक पढ़ लिया था, इसलिए बहुत जल्द वो सब कुछ समझते हुए उन लोगों के साथ पढ़ाई में शामिल हो गया। सावल अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बन गया, मगर सबसे ज्यादा सीरत उस वक्त उस पर वारी हुए जाती थी। यूं तो सावल और सीरत की पढ़ाई से मुतल्लक अक्सर आपस में बात हुआ करती थी, मगर 11वीं क्लास के इम्तिहानात के नतीजे में सावल और सीरत के एक जैसे नंबर आने पर वो दोनों ही हैरान होते हुए एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। ये इत्तेफाक था या कुदरत का खेल, जिसमें वो दोनों ही कठपुतली की तरह अपना किरदार निभाते हुए उस खेल की शुरुआत करने जा रहे थे। तहमीना एक संजीदा तबीयत की मालिक थी और वो अपनी दोस्त के दिल के हाल से नावाकिफ नहीं थी, इसलिए वो अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उसे सावल के साथ बात करने का हर मौका दिया करती थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उन्होंने FSC में बहुत अच्छे नंबर लिए। तभी उस कॉलेज में उन्होंने BSc में पढ़ने के लिए इरादा किया। सीरत जो कि उस कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, तहमीना सीरत की वजह से BSc में दाखिला ले चुकी थी, जबकि सावल उसकी भी ये दिली ख्वाहिश थी कि वो सीरत के साथ ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे। वो कॉलेज गोया उन लोगों की मुलाकात और ख्वाबों की ताबीर का मरकज बन गया था। दोनों ने पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे से मोहब्बत भी करना शुरू कर दी थी, मगर उस मोहब्बत का असर उनकी पढ़ाई पर नहीं पड़ा था। सीरत जो कि एक जुनूनी शख्सियत की मालिक थी, इसलिए वो कभी कभार जब सावल से रूठ जाती थी तो उसकी यही ख्वाहिश होती थी कि सावल ही उसे मनाए, चाहे उन दोनों के बीच होने वाले झगड़े में कसूर किसी का भी हो। सावल भी उसकी इस आदत को समझते हुए हमेशा खुद से ही उसे मना लिया करता था, मगर धीरे धीरे सावल
अब सीरत की इस आदत से तंग आने लगा था। तभी तहमीना उन दोनों के बीच में सुलह सफाई करवाने लगी। ऐसे में वो दोनों अक्सर एक दूसरे से रूठ जाते तो तहमीना उन लोगों के दरमियान पैगाम रसां का किरदार अदा करती। कभी सीरत का पैगाम सावल तक पहुंचाती तो जवाब में सावल का पैगाम सीरत तक पहुंचाती। गोया अब तहमीना भी उन दोनों की लव स्टोरी में बहुत अहम किरदार निभा रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और उन्होंने BSc के सालाना इम्तिहानात देते हुए कॉलेज को खैरबाद कह दिया। इस तरह रोजाना ही होने वाली मुलाकातों का सिलसिला मुनक़ता हो गया, मगर सीरत को एक पल भी चैन नहीं था। जैसे तैसे करके उसने BSc के रिजल्ट का इंतजार किया और फिर सावल ने जब MSc में दाखिला लेना चाहा तो सीरत ने उससे कह दिया फिर से वो एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। मगर अब उम्र के साथ साथ दोनों में सोच बदल रही थी, जिसका ज्यादातर असर सावल की शख्सियत पर हो रहा था। सीरत बार बार रूठने वाली आदत को किसी सूरत भी छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि सावल अब उसे मनाना नहीं चाहता था। अगरचे सावल भी सीरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, मगर उसके ख्याल में छोटी छोटी बात पर रूठ जाना अब बचकाना बात बन चुकी थी। तहमीना भी सीरत और सावल के साथ ही MSc में दाखिला ले चुकी थी। हमेशा की तरह वो भी उन दोनों के साथ ही रहती थी। तहमीना उन दोनों का हाल देखते हुए खुद को प्यार और मोहब्बत के चक्कर से हमेशा के लिए दूर रखना चाहती थी। उसका ख्याल था ये फजूल में पाली गई फिक्र और जवानी को लगने वाला रोग होता है। सावल अब अपनी पढ़ाई में ज्यादा तवज्जो देने लगा था, क्योंकि वो अब अपना कैरियर बनाने के बारे में सोच रहा था, जबकि सीरत MSc सिर्फ अपने शौक की वजह से कर रही थी। MSc के बाद उसका कहीं पर जॉब करने का कोई इरादा न था। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया और MSc के इम्तिहानात देकर तीनों ही यूनिवर्सिटी से एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने घरों को लौट गए, जबकि सावल और सीरत का अब ख्याल था सावल जब मुलाजमत करने लगेगा तो सावल सीरत के घर रिश्ता भेज देगा और सीरत के मुताबिक उसके कहने पर उसके घर वाले मान जाएंगे। अगरचे सावल भी बहुत अच्छे और बड़े घराने से ताल्लुक रखता था, मगर शादी से पहले वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। वो खुददार इंसान था और अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता था। उन्हीं दिनों सीरत अपने वालिदैन के साथ न्यूजीलैंड फैमिली वेकेशन पर चली गई, जबकि तहमीना इस बात को अच्छे से जानती थी, मगर सावल सीरत के न्यूजीलैंड जाने से बेखबर था, क्योंकि उन दिनों उनका आपस में किसी बात पर झगड़ा चल रहा था, जिसके सबब इस बार उन्होंने 10 रोज तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। सीरत को सावल पर मान था कि वो उसे मना लेगा, मगर सावल ऐसा करने वाला नहीं था। जब हमें किसी पर मान होता है तभी हम गिला शिकवा या नाराजगी दिखाते हैं, ये सोचते हुए कि अगला हमारे जज्बात को समझेगा, मगर बाज़-औक़ात हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। सीरत और सावल के दरमियान वैसे भी अब मुलाकातों का सिलसिला खत्म हो चुका था। ज्यादातर बात फोन के जरिए ही एक दूसरे से वो करते थे। हाँ, सीरत की पसंद को मद्देनजर रखते हुए कभी कभार एक दूसरे से वो खतो किताबत का सिलसिला भी शुरू कर लेते थे, क्योंकि सीरत को मोहब्बत भरे खत लिखना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उसके ख्याल में मोहब्बत में लिखे गए खत दोनों फरीकैन के दरमियान मोहब्बत को और बढ़ा देते हैं। इस बार सावल ने पक्का तहैया कर लिया था कि वो सीरत को खुद से नहीं मनाएगा, जबकि सीरत हमेशा की तरह इस इंतजार में थी कि सावल उसे फोन कॉल करके मनाएगा। ऐसे में ना ही दोनों ने एक दूसरे को मैसेज किया और ना ही कोई फोन कॉल की, जबकि सीरत गाहे बगाहे तहमीना से सावल के बारे में खैर खबर मालूम कर लिया करती थी, क्योंकि तहमीना सावल के साथ मुसलसल राब्ते में थी। पहले तो सीरत को लेकर तहमीना फिक्रमंद होते हुए सावल से बात करती थी, मगर अब सावल और तहमीना के दरमियान भी बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो चुकी थी। सीरत को न्यूजीलैंड में गए 2 हफ्ते गुजर गए, मगर उसकी सावल से कोई बात नहीं हुई, जबकि तहमीना भी अब सीरत की फोन कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। ऐसे में सीरत बहुत परेशान हुई, क्योंकि वो सच में ही सावल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। ये अलग बात थी कि उसकी मोहब्बत जुनूनी थी। उसकी आदतों की वजह से सावल शायद उससे उकता गया था। यही सोचते हुए उसने इस बार खुद से सावल को फोन कॉल करने की कोशिश की, मगर सावल ने हैरत अंगेज तौर पर अपना फोन नंबर बदल लिया था, जिसकी वजह से सीरत जब भी सावल को फोन करती तो उसका फोन नंबर बंद मिलता।
सीरत ने बहुत मुश्किल से वहां पर 2-3 हफ्ते और गुजारे और अपने वालिदैन को कैसे भी करके वापस ले आई। घर पहुंचते ही अगले रोज सीरत तहमीना के घर में पहुंच गई ताकि वो तहमीना से पूछ सके आखिर उसका फोन क्यों नहीं अटेंड करती रही और उससे बात करना क्यों छोड़ दिया था। सीरत जब घर में दाखिल हुई तो वो हैरान हो गई क्योंकि तहमीना के घर में तहमीना की शादी की तैयारियां चल रही थी। सीरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि तहमीना ने उसे बताना भी पसंद नहीं किया था। ऐसे में वो अपनी दोस्त तहमीना के पास पहुंची और उसे नाराज होते हुए पहले तो उससे सावल के बारे में पूछने लगी, फिर उसके बाद उसकी शादी पर हैरत का इजहार करते हुए कहने लगी, तुम कैसी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझे बिना बताए कर लिया और तो और तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने मुझे इनवाइट तक नहीं किया। तभी तहमीना सीरत के यूं बेधड़क किए हुए सवालात का जवाब देने की बजाय उससे बात करते हुए बेजारी दिखाने लगी। तहमीना का यूं बदलता हुआ रवैया देखकर सीरत का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया। सीरत वहां से वापस लौट आई जबकि सावल के बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम था कि सावल को एकदम से क्या हो गया। सावल के घर का एड्रेस उसे सही से मालूम तो नहीं था मगर वो किस कॉलोनी में रहता है ये वो जानती थी। सावल जो कि उसका कई सालों से हम जमात रहा था इसलिए वो सावल के वालिद के बारे में बहुत कुछ जानती थी। इसीलिए उसने उस कॉलोनी में पहुंचकर सावल का बहुत मुश्किलों से पता लगा ही लिया। सावल के घर में पहुंचते ही सीरत की हैरतों में और इजाफा हुआ क्योंकि सावल के घर में भी शादी का समा था। सीरत एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई ये कैसा इत्तेफाक था कि तहमीना और सावल एक साथ उससे दूर हो गए थे और फिर दोनों के घरों में शादी का समा भी था। मगर अभी वो एक हकीकत से अनजान थी, वो हकीकत सब हकीकतों से तलख थी। सावल के घर में पहुंचते ही सीरत का सावल से सामना तो नहीं हुआ क्योंकि सावल घर में मौजूद ही नहीं था। अलबत्ता उसकी वालिदा से मुलाकात हुई। सीरत ने सावल की वालिदा को बताया कि वो सावल की क्लासमेट है और उसे पढ़ाई के सिलसिले में सावल की कुछ मदद दरकार थी, इसलिए वो घर पर आ गई। सावल की वालिदा बहुत ही खुश इखलाक और समझदार औरत थी। उन्होंने सीरत से मिलते हुए खुशी का इजहार किया और फिर उसे अपने बेटे सावल की शादी पर मदऊ करते हुए सीरत के हाथ में सावल का शादी कार्ड थमा दिया। सीरत ने कांपते हुए हाथों से सावल का शादी कार्ड पकड़ा और जल्दी से अपने घर वापस लौट गई। घर में आते ही सीरत अपने आप पर मजीद काबू ना पा सकी और फूट फूट कर रोने लगी। पहले तो सीरत ने शादी कार्ड पढ़कर नहीं देखा था आखिर सावल किससे शादी कर रहा है। फिर जब रो धो कर उसके आंसू कुछ देर के लिए रुक गए तो उसने बेड पर पड़े हुए शादी कार्ड को खोला। तभी नम आंखों से धुंधला धुंधला उसे सावल के नाम के साथ तहमीना का नाम पढ़ने को मिला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा ये उसका वहम है। तभी उसने फिर से कार्ड में नजर डाली। फिर तो उस पर क़यामत टूट पड़ी क्योंकि सावल और तहमीना आपस में शादी कर रहे थे। दरअसल तहमीना भी अब सावल को चाहने लगी थी क्योंकि वो दोनों से अच्छी तरह से वाकिफ थी और सबसे बढ़कर सीरत उससे सावल के बारे में हर बात किया करती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी तहमीना सावल को पसंद करने लगी थी। सावल जो कि सीरत से पहले मोहब्बत करता था मगर अब उसके आए रोज के नखरों से तंग आकर बदजन सा हो गया था, जिसमें कहीं ना कहीं सीरत की बेस्ट फ्रेंड तहमीना ने भी इजाफा किया था क्योंकि अब उसकी नीयत बदल चुकी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत का बीज बोते हुए सावल के दिल से सीरत की मोहब्बत का मजबूत तना जड़ से उखाड़ चुकी थी। आखिरी बार उसने सीरत के न्यूजीलैंड जाने पर किया। अपनी तरफ से ही सावल को मन गढ़ंत बातें सुनाई जिसमें यहाँ तक कह दिया कि सीरत तुम्हारी वजह से परेशान रहती है और वो ये कहकर मुल्क से बाहर गई है। कुछ रोज अपने वालिदैन के साथ गुजारेगी तो उसका दिल और जहन सुकून में रहेगा। ये बात सावल को बहुत नागवार गुजरी थी। वो सीरत की वजह से बहुत दुखी था और उसके दुख को समझते हुए सीरत की मकार दोस्त तहमीना ने उसे अपना कंधा फराहम किया, जिस पर सर रखकर सावल ने रोते हुए सीरत से की हुई मोहब्बत भी खत्म कर दी। सीरत जुनूनी जरूर थी लेकिन दिल की बहुत साफ थी। सीरत पर जब दोनों की हकीकत खुली, एक तरफ दोस्त और एक तरफ मोहब्बत, शादी पर उसे दोनों में से किसी ने भी मदऊ नहीं किया था क्योंकि वो उसका सामना ही नहीं कर सकते थे। क्योंकि सावल की वालिदा ने सीरत को शादी कार्ड थमा दिया था, इसलिए सीरत आखिरी बार दोनों को एक साथ देखना चाहती थी। जाने उसकी ये आरज़ू क्यों थी, मगर वो खूब बनाव सिंगार करके शादी वाले रोज शादी हाल में पहुंच गई।
जहां पर तहमीना और सावल दुल्हा दुल्हन बने स्टेज पर बैठे हुए थे। सीरत को यूं सामने देखकर दोनों की नजरें झुक गई, जबकि सीरत आगे बढ़ी और एक बहुत ही शानदार गिफ्ट पैकिंग में रैप हुआ गिफ्ट उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए उनसे शादी मुबारक कहने लगी। ये कहते हुए वो अपने दुखी दिल भारी कदमों के साथ वहां से चली गई। शादी की रात को ही सावल और तहमीना ने बड़ी दिलचस्पी और शर्मिंदगी से सबसे पहले सीरत के दिए हुए तोहफे को खोला। तोहफा तो बहुत खूबसूरत और कीमती था, मगर उसके साथ साथ एक कागज भी था जिसमें सुर्ख स्याही से बड़े बड़े अल्फाज में तहरीर लिखी गई थी, तुम दोनों को ऐसी खुशी मुबारक हो जिसमें एक तरफ दोस्त और एक तरफ मोहब्बत का कत्ल किया गया है। दुआ है तुम जैसे इंसान दोबारा कभी ना मिले, ना मुझे और ना तुम दोनों को। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।